step 5, we have been talking about is 9 events, if you recall. So, well, I am inputting the whatever is coming from outside or coming from the body. So there are 5 events on the left side and 4 events on the right side. Right. So first 5 events we have tried to understand in detail. Now this the 4 events on the right side, and particularly this event in the self, where it says I react on the basis of sanskar, which is based on assumption, or I respond on the basis of sanskar, which is based on knowing, which is based on understanding. So let us understand this in little more detail. So that is what we are intending to do in step 6, because this is where we have to work, intensively. So all this on the left side 1 to 5 is going to happen anyway. The major work has to be done at the level of this event 6, that is I respond or I react. What do I do when I have some input from outside? And how does it work? So let's look at this. So we said there are 2 possibilities: sanskar based on assumption, which leads to reaction. And when it is a reaction, it is more like an enslavement. I am bounded by my own assumptions. I am bounded by the input from outside. Okay. So I am not free to take the decision myself. Whatever comes from outside, more or less, it decides my, reaction, my state of self, my feeling in the self. They are decided by the input coming from outside. So let us understand this. Then we will talk about the 6B, where we have sanskar, which are based on understanding, which leads to response, which leads to self-organization, which leads to a state of swatantrata. So that 6B will talk about this. So let us look at the 6A first. So I am not in a state of continuous happiness within. So I keep seeking for happiness from outside. And then those 2 categories we have talked about right from the beginning. Trying to get happiness from outside through sensation or through the feeling from others. So if this is my state of being, that I am not in a state of harmony and happiness within, and I am seeking for happiness from outside through sensation or through feelings from others, then what is happening? And this is the condition for most of us as it is done today. So if that is the case, then my decisions are influenced by sensation. If I like the taste, there is one situation. If I don't like the taste, there is another situation. So if I like the taste, I become happy, and then we have written excited. This we have discussed in level 1 workshop and many times, that this state of momentary happiness that we get through sensation of our liking, is very temporary in nature. And we are more in a state of excitement, than state of harmony. So when some very favorable sensation comes, then also we feel disturbed. We have liking for it, but we are disturbed inside. We are not in harmony within. So I become happy, and we have said excited.
So if I get a taste which is of my liking, I become excited, I become happy, and then I want to continue with that taste. I want to continue getting that taste. So I have a craving for it, I have a clinging for it, I have an attachment for it. And there is a whole lot of follow-up which takes place, which you can look into the finalities. I decide in favor of a pleasing emotion and I react within. So if I happen to like that, feeling, and then I want to continue with it. Similarly, if I dislike the taste, I become unhappy. I like to discontinue with that taste, so I have some aversion for it. And similarly, when I dislike the feeling that I'm getting from someone, I try to react to it, resist to it. So there is again reaction, there is an aversion. So is this happening? Is this happening in us? And if this is happening, this is third thing also I will mention. You can observe all these three things. Okay. If I react, then I express my reaction outside through the body. Right. So in that, I can do some physiochemical activity. For example, overdressing when it is cold. So when there is cold, I tend to overdress. When there is a hunger, I tend to overeat. Or I can express it in terms of the feeling. Right. I can express in terms of the feeling. So I can react to the feeling the other is expressing. One example is getting irritated. Or I can react to the state of the body. So if there is a headache, I call a doctor. तो ये तीन तरह से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया. या तो बाहर के भौतिक रासायनिक संसार में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं, या दूसरे का जो व्यवहार आ रहा है उसमें बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं, या हमारे शरीर की कोई स्थिति बनी हुई है उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं. तो फीवर हो गया है, आप रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जबकि आप तो इतना ही करना चाहते हैं कि शरीर के फीवर के लिए कुछ करना है तो करें. तो ये तीन तरह से अभी हम रिएक्ट करते हैं. तो हमको ये देख लेना चाहिए कि जो है तीन तरह से हमारा कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है. तो अब 6A को देखें पूरा. तो जब हम मान्यता के आधार पर कोई संस्कार बना लेते हैं तो इनवेरिएबली हम प्रतिक्रिया पूर्वक जीते हैं, और ये एक तरह का असहाय स्थिति होता है, एक बंधन का स्थिति होता है, एक गुलामी जैसी रहती, स्वतंत्रता जैसी रहती. तो उसमें तीन बातों को देखना है. एक तो ये देखना है कि हम अपने में कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की स्थिति में है कि नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं. ये पहली बात. दूसरा ये देखना है कि हमारा जो निर्णय है परस्परता में हमको क्या करना है, वो हमारे भाव से, हम जो भाव मिल रहा है बाहर से या जो सेंसेशन मिल रहा है उससे तो प्रभावित नहीं है. इस बात को देखना है कि कोई अनुकूल संवेदना आ गया तो उसके प्रति हमको क्रेविंग होने लग गया, क्लिंजिंग होने लग गया, उसको हम पकड़ने की कोशिश करने लगे. किसी ने कोई अच्छा भाव व्यक्त किया तो हम उसके साथ जो है चिपक गए. ऐसा तो नहीं हो रहा है. किसी ने खराब भाव व्यक्त किया
तो उसके प्रति इरिटेशन होने लगा। कोई अनुकूल संवेदना, प्रतिकूल संवेदना आने लगी तो उसको मैंने हटाने का प्रयास शुरू कर दिया। तो क्या स्थिति, क्या चल रहा है हमारे अंदर। और तीसरा ये कि बाहर जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ वो भी रिस्पॉन्ड है या रिएक्शन है। और रिएक्शन के इतने सारे फॉर्म हो सकते हैं। ये तीन बातों को हमको जांचना है 6A में। ठीक है कि नहीं जी। हाँ, तो ठीक है 6B के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, उससे और चीजें साफ होंगी। तो 6B को ठीक से समझ लें, क्योंकि करने का काम तो यही है। और ये जब करने लगेंगे या समझेंगे कम से कम इसको, तो लौट के 6A के बारे में भी समझ में आएगा कि क्या समस्या हुआ और उसका उपाय क्या है। ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर 6B की हम बात कर रहे हैं, हमारे संस्कार अगर समझ के पर आधारित हैं, है ना, सही समझ के आधार पर हमारा सही भाव विचार बना हुआ है, तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तब हम स्वतंत्रता पूर्वक भी जीते हैं अपने में और दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। जब हमारे में समझ का काम नहीं हुआ है, हमारा भाव निश्चित नहीं हुआ है, हम निरंतर सुख की स्थिति में नहीं है और बाहर से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, तब रिएक्शन करते हैं। उसको 6A में बताया। 6B में ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने में सही समझ के साथ हैं, अपने में हार्मनी में है, सुखी हैं, सही भाव विचार हमारे में चल रहा है, तो हम अपने में आराम में रहते हैं। एक स्टेप बात यह है, so I continue to be in a state of harmony, happiness based on right understanding and of course right feeling and right thought. ये स्थिति हमारी बनी हुई है कि नहीं। तो बाहर से सुखी होने का मुद्दा नहीं। अब मैं अपने समझ के साथ सही भाव विचार में बना हुआ हूँ, उस आधार पर मैं सुखी हूँ, जिसके बारे स्टेप 1 में बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। तो जो स्टेप 7 तक जाकर इस बात को सुनिश्चित किया कि हर क्षण हमारे में संबंध व्यवस्था और सचित्त का भाव ये चल रहा है, विचार चल रहा है, अन्यथा नहीं चल रहा है। जब हम वैसी स्थिति में हैं तो हम अपने में हमेशा हार्मनी में हैं, सुखी हैं। ये स्थिति है कि नहीं, इसको देखें। जब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपने में सही समझ, सही भाव, सही विचार के आधार पर सुखी हैं, अब बाहर से कोई इनपुट आता है, कोई सेंसेशन आता है, कोई संवेदना हम पढ़ते हैं, चाहे वो तीनों में से किसी कारण से हो, ठीक है ना, शरीर में ही कुछ घटना के कारण हो रहा हो या बाहर की भौतिक रासायनिक घटना में परिवर्तन होने के कारण शरीर में जो प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण हो रहा हो, या दूसरा व्यक्ति ने कोई व्यवहार किया है उसका कुछ प्रभाव पड़ा है हमारे शरीर पर, उसके कारण संवेदना हो रही है। तीनों में से कोई भी कारण हो, उस संवेदना को मैं पढ़ता हूँ निर्णय पूर्वक और उसको एक सूचना के रूप में लेता हूँ। अब ये हमारे सुख दुख का कारण नहीं है कि जो बाहर से संवेदना आई, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मैं तो अपने सही समझ, सही भाव के साथ, सही विचार के साथ सुखी हूँ। उसके लिए हमको बाहर से कोई संवेदना की जरूरत नहीं है सुखी होने की। लेकिन मैं बाहर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, संबंध में जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं सूचना को, संवेदना को एक सूचना के रूप में लेता हूँ, जो बाहर के बारे, शरीर के बारे कोई सूचना हमको मिल रही है। तो सुखी होने के लिए अब सेंसेशन का प्रयोग नहीं रहा। दूसरे के साथ संबंध का निर्वाह करने के लिए हम उसको सूचना के रूप में देख रहे हैं, संवेदना को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको अब धीरे धीरे अपने को अपने में देखना है। तो ये लिखा है कि आई मेक यूज ऑफ द सेंसेशन टू मेक राइट इवेल्युएशन ऑफ द बॉडी और द आउटसाइड वर्ल्ड एंड देन डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग। तो अब संवेदनाएं सुखी होने के लिए नहीं है। संवेदनाओं से हमको सूचना मिल रही है बाहर के बारे, और उसका क्या उपयोग होगा? उसका उपयोग होगा कि बाहर के साथ हम ठीक से जी सके, उभय सुख पूर्वक, उभय तृप्ति पूर्वक जी सके।
इसलिए हम अब बाहर से सूचना ले रहे हैं। तो अब हमारे लिए जो संवेदना है वो हमको सीधा सीधा प्रभावित नहीं करती है, मेरे स्थिति को नहीं बदलती है वो, जैसा कि रिएक्शन में हो रहा था। हमारी स्थिति तो हमारे समझ के साथ बनी हुई है, हमारे भाव विचार के साथ बनी हुई है, सुखद है वो। अब मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होना चाहता हूँ वातावरण के साथ, शरीर के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ, भौतिक रासायनिक संसार के साथ। इसलिए वहां से जो भी सूचना आ रही है ना, जो संवेदना उसके कारण आ रही है, उसको मैं संवेदना को सूचना के रूप में पढ़ता हूँ, उससे सुखी दुखी नहीं होता हूँ। मैं तो सुखी हूं ही, मैं सुखी भी हूं और उस वस्तु के संदर्भ में मेरा भाव विचार पहले से निश्चित भी है। तो मैं उसको सूचना के रूप में लेता हूँ है ना, और उसके आधार पर उसके साथ कैसे जिम्मेदारी से प्रस्तुत होना है ये तय करता हूँ। तो तीनों केस को अलग अलग लिए हैं। फिजियोकेमिकल चीजें अगर हैं उसमें कोई चेंज हो रहा है ना, जैसे जाड़ा बढ़ रहा है, ठंडक है ना, गर्मी बढ़ रही है, ठीक, तो उसके कारण शरीर में कोई संवेदना होती है, उस संवेदना को मैं सूचना के रूप में पढ़ता हूँ, उससे सुखी दुखी नहीं होता हूँ। उससे मैं इस बात का आकलन करता हूँ कि कितनी ठंड पड़ रही है, शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से, संरक्षित रखने की दृष्टि से हमको क्या करना है। तो अगर ज्यादा कोल्ड है तो उसके लिए वार्म क्लोथ का प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा कोल्ड है तो और ज्यादा वार्म क्लोथ का प्रयोग करेंगे। इससे हमारा सुख दुख नहीं निर्भर कर रहा है, हमारा सुख दुख तो हमारी समझ और भाव के साथ निश्चित है, और शरीर के प्रति हमारे में जिम्मेदारी का भाव बना ही हुआ है। तो जब भी बाहर के वातावरण में बदलाव होने के कारण कोई शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमको कोई सूचना मिल रही है, तो उससे हम तय करेंगे कि क्या करें। तो ये भी तय करेंगे कि भाई शरीर को कुछ कपड़े पहना दें, ये भी तय कर सकते हैं कि भाई बाहर जो है हवा ज्यादा चल रही है तो खिड़कियों को बंद कर दें। तो ये सब रिस्पॉन्स है। तो बाहर के वातावरण के संदर्भ में ये है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के संदर्भ में अगर देखें, द फीलिंग द अदर इज एक्सप्रेसिंग एंड देयर स्टेट ऑफ बीइंग, तो जब कोई भाव के बारे सूचना मिल रही है हमको, दूसरे के व्यवहार के बारे सूचना मिल रही है इस संवेदना से, ठीक, तब हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी रिएक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमने अपने को समझा है और दूसरे मानव को समझा है, तो हर एक के साथ संबंध को मैंने पहचान लिया है, उनके प्रति मेरा भाव बन गया है, संबंध का भाव, विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का, और वो भाव हमारे में निश्चित है। उस भाव के साथ मैं सुखी हूं। अब सुखी रहता हुआ उस भाव के साथ मैं परस्परता में जो संवेदना आ रही है उसका मूल्यांकन करके उसकी स्थिति का पता लगाता हूँ कि उसकी स्थिति क्या है, और फिर तय करता हूँ कि कैसे मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ, कैसे उसके साथ प्रस्तुत हूँ जवाब, ताकि वो उसके लिए भी आरामदायक हो, सुखद हो। ठीक, अभी तो क्या करते हैं हम, आवेशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। अब हम ये करेंगे कि भाई अगर कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहा है तो इससे हमको ये समझ में आता है कि वो अपमान के भाव को व्यक्त कर रहा है या करना चाह रहा है। लेकिन ये बात तो हमको पक्की हो जाती है कि उसकी हालत खुद की ठीक नहीं, क्योंकि अगर समझदार होता, जिम्मेदार होता तो उसमें सम्मान का भाव होता, सम्मान के भाव को ही व्यक्त कर सकता। अगर अन्यथा कर रहा है इसका मतलब परेशानी में है। ठीक, तो मैं क्या करूं, तो मेरा भाव तो पहले से तय ही है, मैं तो उसके साथ सम्मान पूर्वक ही प्रस्तुत होऊंगा, विश्वास पूर्वक ही प्रस्तुत होऊंगा। तो ये रिस्पॉन्स होगा मेरा।
और दूसरा ये भी मेरे को ध्यान आएगा कि भाई उसके लिए कुछ करना है हमको, उसको आराम देने के लिए, तो उसके समझ में जो हम सहयोग कर सकते हैं समझ के काम में, उसका एक मानसिकता हमारा बना रहेगा। जब भी उसकी स्वीकृति बनती है और वो समझने को तैयार होता है तो मैं उसमें सहयोग करूंगा, या जिन माध्यम से भी मैं उसका ध्यानाकर्षण करा सकता हूँ उसको ध्यानाकर्षण कराने का प्रयास करूंगा। तो ये रिस्पॉन्स है, ये रिएक्शन नहीं है। तो दो बातें हुई, उसके शब्दों से उसके व्यवहार से मैं प्रभावित नहीं हुआ, मेरा भाव तो उसके प्रति सही बना रहा अपने समझ के आधार पर, मैं अपने में सुखी बना रहा, सुख पूर्वक उनके बात का, उनके शब्दों का, उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया, उससे उसके स्थिति के बारे में हमको पता चला, उसकी जो स्थिति है उसके साथ अब हमको क्या करना है वो मैंने अपने में निर्णय किया और वैसा प्रस्पष्टता में किया। ये रिस्पॉन्स। तो ये दूसरी कंडीशन है जब दूसरे के व्यवहार को हम से आने वाली संवेदना को देख रहे हैं। तीसरा कंडीशन है कि जब शरीर में कुछ घटना घट रही है उसके तहत संवेदना हो रही है, उसमें क्या करेंगे। ठीक, तो हम शरीर की स्थिति के बारे में आकलन करेंगे कि शरीर की क्या स्थिति, और उसके हिसाब से हमको क्या करना है उसका निर्णय करेंगे। तो एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है ये कि सर में दर्द होता है ना, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि पित्त बढ़ गया हो। पित्त बढ़ गया है उसका एक कारण हो सकता है कि शरीर में पानी की कमी है, या पानी अगर हम प्रयोग करेंगे तो पित्त हमारा कम हो जाएगा तो हेडेक कम हो जाएगा। ऐसा अगर हम आराम से हेडेक को देख पा रहे हैं, उससे मिलने वाली सूचना का आकलन कर पा रहे हैं, उससे शरीर की क्या स्थिति है उसको देख पा रहे हैं, तब मैं रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ कि भाई शरीर की स्थिति ऐसी है, इसमें अभी थोड़ी और पानी पीने की जरूरत है, पानी की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है, तो बढ़ा लेता हूँ। अगर किसी पोस्चर में हम बैठे हैं, दर्द हो रहा है, हमको सूचना है दर्द होने की, हमने ये देख लिया कि भाई शरीर में कोई सूचना है दर्द की, तो शायद उसकी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है तो बदल लेते हैं पोस्चर। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अभी ये बात को देखना है, पहली बात कि हमारा स्थिति अपने में ठीक बना हुआ है कि नहीं, हमारे में सही समझ सही भाव के साथ हम अपने में आराम में है कि नहीं, सुखी है कि नहीं निरंतर। और दूसरा, जब परस्परता से कोई सूचना आ रही है शरीर के माध्यम से, तो इन तीन स्थिति में हम इस तरह से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं या हम बाहर के सूचना से प्रभावित होकर रिएक्शन करने लगते हैं। फिर लिखा है आई मे एक्सप्रेस माई रिस्पॉन्स आउटसाइड थ्रू द बॉडी। ये तो स्पष्ट ही है। द फिजियोकेमिकल चेंजेस बिहेवियर और वर्क ऑफ द अदर स्टेट ऑफ द बॉडी हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन माई स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ये बात अभी हम दोनों शुरू में कर ही ली थी। तो इतनी सारी चीजों को हमको देखना है अपने में। तो ठीक से देखेंगे तो ऐसा है, उसको मैं फिर से और थोड़ी डिटेलिंग कर देता हूँ कि क्या करना है। तो बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग विद इन, आई हैव द राइट फीलिंग and right thought. So my feeling and thought is based on right understanding and it is not influenced by any external input. ये स्थिति है कि नहीं, इसको देख लें। I am and I continue to be in harmony, that is in the state of happiness. ऐसा है कि नहीं। I use the external input to evaluate the state of my body or state of the outside world. ऐसा हो रहा है कि नहीं। My desire, my feeling is definite. That is, I am always clear about my relationship, my responsibility. तो ये जो बाहर की जो भी चीजें हैं उनके प्रति हमारा भाव क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो हमारे में निश्चित है पहले से समझ के आधार पर। जैसे शरीर के साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका पोषण कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें, उसका सदुपयोग कर सकें। दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसके साथ सही व्यवहार कर सकें, न्याय वाले पूर्ण व्यवहार कर सकें, है ना, ताकि उभय सुख सुनिश्चित हो सके। तो विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, ये सब मेरे में बना रहे, उसी के साथ हम प्रस्तुत हों। इसी तरह से शेष प्रकृति के साथ जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि शेष प्रकृति का भी हम संवर्धन कर सकें, संरक्षण कर सकें, सदुपयोग कर सकें। उसी का एक एक्सप्रेशन है
my working with rest of nature leading to mutual prosperity, my prosperity as well as prosperity of rest of nature. और पूरी व्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे तो पूरी व्यवस्था में जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो समाज, अखंड समाज के लिए, अखंड व्यवस्था के लिए काम करे। तो अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए काम करे। ये सब जो हमारा करना बनता है, जिम्मेदारी बनती है, वो पहले से ही हमको समझ के आधार पर तय है, ठीक है। और उसी के अर्थ में फिर हम आने वाली सूचना से बाहर की स्थिति का आकलन करके अब जो रिस्पॉन्ड हमको करना बनता है उसके तहत हम क्या करेंगे ये तय करते हैं। So now with the external input, I decide how to be mutually fulfilling, to fulfill my definite responsibility participation under the given situation, and that is how I respond. तो ये पूरे को देखना है अपने। ये जितनी बातें अभी मैंने डिस्क्राइब की 6B में, इसको देखना है। तो 5 मिनट इसको देख लें, कोई प्रश्न हो इस पर इमीडिएटली, कोई ऑब्जर्वेशन हो तो हम लोग बात कर लें, और फिर कल सुबह तक 6A और 6B दोनों को देखेंगे, ठीक। ये 6A और 6B जो है वो जो अभी 5 की बात कर रहे थे, 5 का सारा जो काम हम लोग किए थे उसको करना है, और उसमें स्पेसिफिकली इस बात को फोकस करके 6 में करना है कि रिएक्शन हो रहा है या रिस्पॉन्ड हो रहा है, क्योंकि वही मैटर करता है हमारे लिए। तो जो इंस्ट्रक्शन, जो हमको ध्यान देने के मुद्दे थे वो तो मैंने रख दिए हैं। अभी टाइम हो गया, 6:30 बज गए, लेकिन जिनके पास समय है वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो 5 मिनट इसको देखने का काम कर लें, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन हैं उसको शेयर कर लें, और जो प्रश्न बचे हुए हैं पहले के या अभी इसके संदर्भ में, उस पर हम लोग बात करें। बात किया है 6A और 6B पर, और अगर ध्यान से देखेंगे तो 6A और 6B पे जो काम होना है उसको सिसोदिया जी ने इंगित भी किया था कि अभी तक एक्सरसाइज 1 के तहत जो 7 स्टेप पे काम हुआ, प्लस एक्सरसाइज 2 के तहत जो पहले 4 स्टेप में काम हुआ, उस सब का कॉम्बिनेशन के रूप में स्टेप 5 में काम हम लोग कर रहे थे, और अब स्टेप 6 पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे तो ये स्टेप 5 का ही एक भाग है, पूरी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें से एक भाग है स्टेप 5 का। मतलब ये 6 जो है कि ये जो हम रिएक्शन या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो स्टेप 5 में जितना काम हम लोग कर रहे थे उसका एक भाग है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। ये सारे इवेंट्स, जितने 9 इवेंट्स थे उसमें से जो 6ठा इवेंट है आई रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, उसको ही हम लोग स्टेप 6 में एक्सपेंड कर रहे हैं बेसिकली। बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमारा जीना, सुख दुख इसी के अराउंड फोकस्ड है ना, वहीं से सब मामला उछल पुछल में चल रहा है, तो उसको थोड़ा और विस्तार करके देखा है ना। तो ये सभी जो एक्टिविटी सेल्फ में हो रही है, 5 एक्टिविटी है ना, उनमें से किसी को भी और एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको हम लोगों ने ध्यान देकर एक्सपेंड किया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा। अभी हम रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में से कुछ कर ही रहे होते हैं, परिस्पष्टता में जी रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। तो और जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी कभी एक्सपेंड करके देख सकते हैं, बहुत सारा कुछ है उसमें करने के लिए, लेकिन उसकी जगह हम लोगों ने सबको नहीं किया। स्टेप जो इवेंट नंबर 6 है, सेल्फ में जो इवेंट नंबर 4 हो रहा है, उसको फोकस करके देख रहे हैं स्टेप 6 में, आई रिएक्ट और आई रिस्पॉन्ड। इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अभी हमारा बड़ा भाग जीने का वो इसी पर है कि बाहर से कुछ आया, कोई इनपुट आई, चाहे वो व्यक्ति से आया हो, चाहे वातावरण, भौतिक रासायनिक वातावरण से आया हो, उसी पर हम लगे रहते हैं, या इन दोनों से नहीं तो शरीर से ही कुछ घटना घट रही है, शरीर में कुछ संवेदना हो रही है, तो उसी को रिएक्शन रिस्पॉन्ड करने में ही हम अपनी जिंदगी का बड़ा भाग निकाल देते हैं। तो उसको फोकस करके देखा है हम लोगों ने स्टेप 6 में, और स्टेप 6 में भी 2 भाग में देखा हम लोगों ने, 6A को और 6B को 2 भाग करके देखा, ठीक है।
तो एक भाग में रिएक्शन को देखा, एक भाग में रिस्पॉन्स को देखा। तो 6A में रिएक्शन को देखा, 6B में रिस्पॉन्स को देखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों स्टेप्स, क्योंकि हमारा, जैसा मैंने कहा कि जीने का बड़ा भाग इसी के अराउंड चल रहा है। और इसमें भी देखेंगे तो रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिएक्शन से तो कुछ निकल नहीं रहा है, उसको तो सिर्फ एक बार समझ लिया जाए कि भाई ये सब चल रहा है प्रोसेस, और इससे निकल कुछ नहीं रहा है। तो मुख्य काम तो मतलब उसको बनाए ना रखा जाए, इतने के निष्कर्ष के लिए रिएक्शन को देखना भी जरूरी है, बट मुख्य काम तो रिस्पॉन्स पर होना है। तो रिस्पॉन्स क्या है उसको मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, फिर इस पर कोई भी प्रश्न होगा तो हम लोग उसको टेकअप करेंगे क्योंकि मेजर काम हमको इसी पे करना है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं। तो पहली बात लिखा है, आई कंटिन्यू टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी, इन ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग विद इन। तो ये सिंपल स्टेटमेंट हम लोगों ने बिगनिंग में कहा है कि इस स्टेट के साथ हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब अगर देखेंगे तो जो एक्सरसाइज 1 का स्टेप 1 से लेकर 7 तक है, वो सब करके हम हार्मनी में, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में हैं, उसके साथ रिस्पॉन्स है, उसके बिना तो रिएक्शन ही है। तो ये उसका प्री कंडीशनिंग है, प्री रिक्विजिट है। तो बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट है ना। ये जो सारा स्टेप एक्सरसाइज 1 का स्टेप 7 तक का काम था वो किया गया, इस एक्सरसाइज 2 के भी स्टेप 5 तक का काम किया गया है ना। वो सब प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं, उसके साथ अब हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। So I continue to be in a state of harmony, state of happiness based on right understanding within. So based on right understanding, based on right feeling and right thought within, I am in a state of harmony and happiness. ये कंडीशन उसका प्रीरिक्विजिट है रिस्पॉन्स का। ये नहीं है तो ज्यादा संभावना यह है कि हम रिएक्शन ही करेंगे। तो इसको ठीक से देख लीजिए कि ये कंडीशन है, तभी तो हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये कंडीशन अगर कहीं भी रुका हुआ है, वायलेट है, तो फिर ये रिस्पॉन्स होने के चांसेस बहुत कम है, रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये एक बड़ा कंडीशन है जिसको हम लोग बहुत खोला नहीं था हम लोगों ने पहले, क्योंकि काम आगे क्या करना है उसको इंगित किया था। बट ये एक बड़ा कंडीशन है जो अभी तक जितना हम अभ्यास करते रहे वो सबका निष्कर्ष के रूप में ये स्थिति हमारी होनी जरूरी है, तभी हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, नहीं तो रिएक्शन करेंगे। इस बात को मैं बहुत जोर देके कहना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत जल्दी मान लेते हैं कि भाई हम तो रिस्पॉन्ड ही कर रहे हैं, लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो अपने बारे अधिमूल्यन, दूसरे के बारे अवमूल्यन, ये तो बहुत सामान्य हमारा भी ढंग है ही। तो उसमें अपना ठीक ठीक मूल्यांकन करने के लिए ये पूछना जरूरी है कि हम इस स्थिति में हैं कि नहीं, कि हमारा समझ सही है, उसके आधार पर हमारा भाव विचार सही है, उसके आधार पर हम संगीत में हैं, सुखी हैं, इस स्थिति पर हम हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तभी हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, अन्यथा कुछ कहना मुश्किल है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि रिएक्शन करेंगे। चांसेस ज्यादा तो रिएक्शन का। इसको अगर ठीक से देखेंगे हम इस रूप में, तब हम अपने पर आगे काम कर पाएंगे, तब हम दूसरे को भी ठीक से स्पेस दे पाएंगे कि हो सकता है कि दूसरा भी सही हो सकता है कि हम ही गलत हों, या दोनों ही अपने ढंग से सही मान रहे हो, लेकिन हम भी रिएक्शन ही कर रहे हैं, दूसरा रिएक्शन कर रहा है, हम भी रिएक्शन ही कर रहे हैं। ये सब बातें फिर हमारे मानस में खुली रहेंगी। तो जितना हम रिजिड हो जाते हैं और दूसरे का आकलन करने लगते हैं और आरोप लगाने लगते हैं, वो सब चीजें फिर नियंत्रित होंगे।
तो हमारी अपनी गति भी होगी और परस्परता में भी हम गति कर पाएंगे। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, आई कंटिन्यू टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी एंड हैप्पीनेस बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग विद इन। उसमें और जोड़ सकते हैं बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट विद इन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ये, बहुत मतलब बड़ा प्री रिक्विजिट है, बट है ये प्री रिक्विजिट, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना जरूरी है और हमारे में सेटिस्फाई होता है कि नहीं इसको देख लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं रिएक्ट करने के संभावना में हैं, ज्यादा लाइकलीहुड है ये कि हम रिएक्ट ही करेंगे। रिएक्ट करेंगे तो 6A में हम लोगों ने बात किया कि क्या करेंगे। तो 6B में जब रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो ये उसका प्री रिक्विजिट है। उस प्री रिक्विजिट के साथ अब हम क्या करेंगे उसके बारे में आगे का डिटेल है। तो ये लिखा है कि आई मेक यूज ऑफ द सेंसेशन टू मेक राइट इवेल्युएशन ऑफ द बॉडी और ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम दिस वेयर दिस information is coming, and then decide how to respond, how to be mutually fulfilling with that unit which I am observing the sensation from and making the evaluation about that unit. ये मुख्य बात है। तो जहां तक मेरे भाव की बात है, विचार की बात है, वो भाव निश्चित है, विचार निश्चित है समझ के आधार पर, है ना, और हम अपने में आराम में हैं। उस भाव विचार के साथ अब हम बाहर के जो इनपुट है उसको ले रहे हैं, जो सूचना मिल रही है उस सूचना के आधार पर दूसरी इकाई की क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं और उसके साथ पूरकता से जीने के अर्थ में अब हमको क्या करना है ये तय कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्स का मतलब इतना है। इसको काफी ठीक से समझ लेना चाहिए, एक एक बात को ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि स्लिप तो ज्यादातर यहीं हो रहा है। तो ये जो सेंसेशन बाहर से आया शरीर के माध्यम से, वो मेरे सुख और दुख का कारण नहीं है। मैं तो सुखी हूं ही, सही समझ, सही भाव, सही विचार से सुखी हूं। तो मेरे सुखी होने का काम हो गया है। अब वैभव के रूप में मैं परस्परता में जीने का काम कर रहा हूं। उस वैभव के रूप में जीने समय इतना तो निश्चित है कि मुझे दूसरे इकाई के साथ पूरकता के अर्थ में जीना है, उभय तृप्ति के अर्थ में जीना है। उसको केंद्र में रखकर अब हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बाहर से जो भी घटना घट रही है, जो भी वेदना हमको शरीर के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ, उससे बाहर के बारे जो सूचना मिल रही है, उस सूचना के आधार पर मैं पहला काम ये करता हूँ कि उस इकाई के स्थिति का आकलन करता हूँ। कोई व्यक्ति हो या वातावरण हो या शरीर हो, इनका आकलन करता हूँ कि क्या स्थिति है, और फिर यह तय करता हूँ मैं कि मेरे जो उसके साथ पूरकता पूर्वक जीने का भाव है, उस भाव के तहत हमको क्या करना है। तो शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो उससे मैं दुखी सुखी नहीं होता हूँ। मैं खून बह रहा है या दर्द हो रहा है, इसको मैं सूचना के रूप में लेता हूँ, और उसका इलाज करना है शरीर का, जहाँ चोट लगी है उसमें कोई दवा लगानी है, इस बात का निर्णय करता हूँ और ऐसा करता हूँ। ये हमारी पूरकता है शरीर के साथ, क्योंकि शरीर का पोषण करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। उसके तहत हम अपना भाव तो निश्चित रहता ही है, उसके तहत अब हम जो सूचना मिल रही है उससे उस इकाई की स्थिति का पता लगाते हैं और उसके लिए जो करना है वो करते हैं। ये रिस्पॉन्स है। तो ये जो सूचना मिलने का काम है उसको थोड़ा यहाँ विस्तार किया है। तो फिजियोकेमिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अगर हो रहा है, तो उसका एक एग्जांपल है कि अगर हमको ये दिखाई पड़ता है कि शरीर से जो संवेदना आ रही है
उसमें ये सूचना है कि शरीर को ठंडक लग रही है। उससे ये निष्कर्ष है कि वातावरण में ठंडक बढ़ी है। ठीक है, इससे हमको इतना पता लग गया कि भाई वातावरण में ठंडक बढ़ी है। तो अब क्या करें? दो तरीका हो सकता है, या तो वातावरण को गर्म करें या शरीर में कुछ प्रोटेक्शन कर लें। तो हम ये भी तय कर सकते हैं कि हीटर चलाएं या खुले में नहीं बैठ के कमरे में चले जाएं। हम ये भी तय कर सकते हैं कि अगर हमको बाहर रहना जरूरी है तो शरीर को कुछ कपड़ा पहना दें, गर्म कपड़ा पहना दें। ये हमारा पूरकता है। जो भी सूचना हमको मिली उसके आधार पर पूरकता को हम तय किए। लेकिन संवेदना हमारे सुख दुख का कारण नहीं बनी है। ये सूचना मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। सुखी तो मैं हूं ही। सुखपूर्वक उसके साथ परस्परता में पूरकता के साथ निर्वाह करने के अर्थ में हम इस संवेदना का उपयोग कर रहे हैं, इस सूचना का उपयोग कर रहे हैं। तो उसका एक उदाहरण हम लोगों ने लिया फिजियोकेमिकल चीजों के बाद, वातावरण के बाद। इसी तरह से दूसरा उदाहरण जो है वो सब दूसरे का जो व्यवहार है उसके संदर्भ में लिया हम लोगों ने। द फीलिंग द अदर इज एक्सप्रेसिंग एंड देयर स्टेट ऑफ बीइंग। तो अगर किसी ने गुस्सा व्यक्त करने का के लिए कोई जोर आवाज से कुछ बोला, कोई अपशब्द प्रयोग किया, ठीक है ना, तो उसको सुन के हम दुखी हो जाते हैं ऐसा नहीं, विरोध में आ जाते हैं ऐसा नहीं। उसको सुन के हमको ये समझ में आता है कि भाई इस व्यक्ति में सही भाव नहीं है ना, क्योंकि सही समझ नहीं है, इसलिए अपने में परेशान होगा, दुखी होगा, दुख पूर्वक ये ऐसे भाव को रख रहा है, रख के व्यक्त कर रहा है। तो अगर ये आदमी पहले से ही परेशानी में है तो मुझे उसको आराम देना है या हमको उसको परेशान करना है? तो उसको आराम देना है, ऐसा हम तय करते हैं। उसको आराम देने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसके टर्म्स में तय करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कोई एक्साइटमेंट या एंगर एक्सप्रेस कर रहा है तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये दुखी है, दुखी करने की कोशिश कर रहा है, इसको समझ सही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें? तो हम तो उसका सहयोग ही करें। पहले हम अपना व्यवहार को ठीक रखें, फिर उसके समझ में सहयोग अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए अपनी मानसिकता तो बना के रखें। ये रिस्पॉन्स है। इसी तरह से शरीर में कुछ घटना घट रही है ना, जैसा मैंने उदाहरण लिया था कि चोट लग गई है, तो चोट को जो है ठीक करना है हमको, उसके लिए रोने धोने की जरूरत नहीं है। तो हम उस सूचना को पढ़ते हैं, उससे पता लगाते हैं कि शरीर में कहीं चोट लग गई है, कहीं उसको रिपेयर मेंटेनेंस करना है, तो मैं रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए निर्णय लेता हूँ, उसको रिपेयर करता हूँ। ये 3 कंडीशंस के बारे में यहाँ पर हम लोग मेंशन किए, तो इसको ठीक से देख लीजिए। अब ये हर जो भी हम परस्परता में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस जगह हमको ये देखना चाहिए कि हमारी स्थिति ठीक है कि नहीं। पहले तो वो नहीं है तो पहले उसको ठीक करें, क्योंकि वो ठीक नहीं है तो करने जाएंगे तो रिएक्शन ही करेंगे। तो पहले अपनी स्थिति को पर काम करें, अपने को ठीक कर लें। ठीक होकर फिर हम इंटरेक्शन को देखें, तब जो भी बाहर से आ रहा है वो संवेदना के रूप में दिखाई पड़ेगा, एक सूचना के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब उस सूचना का मूल्यांकन करके जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी स्थिति का पता लगाएं, और उस स्थिति में अब हमको पूरकता के अर्थ में क्या व्यवहार करना है, क्या कार्य करना है, उसको तय करें और वैसा करें। ये हमारे लिए करने का काम है। उसको आगे लिखा है, मैं एक्सप्रेस माई रिस्पॉन्स आउटसाइड टू द बॉडी। तो जब जरूरत लगता है कि बाहर कुछ एक्सप्रेस करना है तो करेंगे। The physiochemical changes the behavior, the work of the other. The state of my body has no direct influence on my state of happiness. I am in a state of happiness by virtue of my being self-organized, my being in a state of harmony through right understanding, right feeling, and right thought. So that part is definite. With that part only I am interacting, I am responding.
तो इतनी बात हमको अपने में देखना है। उसी को 6B में थोड़ा और ठीक से लिख दिया गया है, आप उसको देख लीजिए, है ना। उसकी डिटेलिंग है कि रिस्पॉन्ड अगर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या निकलेगा। तो उसका मतलब है बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग विदिन I have the right feeling and right thought. So my feeling, my thought is on the basis of right understanding and it is not influenced by the external input, external information. एक बात ये है। सेकेंड बात उसी के कंटिन्यूएशन में, I am and I continue to be in harmony, that is in the state of happiness. ये है कि नहीं देख लीजिए। I use the external input to evaluate the state of my body or state of the outside world. तो इस रूप में हम इनपुट को देख पा रहे हैं कि नहीं, सूचना को देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, इतना सब है तो उसके साथ जो होगा वो ये होगा कि माई डिजायर, माई फीलिंग इज डेफिनेट, दैट इज आई एम ऑलवेज क्लियर अबाउट माई रिलेशनशिप, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशनशिप। तो ये अपने में भाव सही बना हुआ है कि नहीं, और उस इकाई के प्रति जिम्मेदारी हमारे में बनी हुई है कि नहीं। ये जिम्मेदारी क्या है इसको देखेंगे तो शरीर के साथ जो जिम्मेदारी बनती है वो शरीर का पोषण करने का, संरक्षण करने का और सदुपयोग करने का जिम्मेदारी है। So with my body I have this responsibility, this feeling of nurturing, protecting and rightly utilizing the body. दूसरे मनुष्य के साथ क्या हमारा जिम्मेदारी बनता है, तो हम सही व्यवहार कर सकें जिसमें हम उभय सुख को सुनिश्चित कर सकें। शेष प्रकृति के साथ क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा वर्क कर सकें शेष प्रकृति के साथ जो उभय समृद्धि को सुनिश्चित करता है। और पूरी व्यवस्था में क्या जिम्मेदारी है, तो हम व्यवस्था में इस रूप में भागीदारी कर सकें कि परिवार के रूप में, व्यवस्था के रूप में हम ठीक ठीक जी पाए, है ना, परिवार से लेकर पूरे विश्व परिवार तक। इतना अगर कर रहे हैं तो इस जिम्मेदारी के साथ अब मैं तय कर सकता हूं कि भाई हमको परस्परता में अब क्या करना है। जो सूचना मिली है वो प्लस ये जिम्मेदारी का भाव संबंध में, इन दोनों के योगफल में अब हम तय करेंगे कि बाहर हमको क्या करना है। So now with the external input or information, I decide how to be mutually fulfilling to fulfill my definite responsibility under the given situation, and that is how I respond. तो इतना हमको काम करना है रिस्पॉन्स के लिए। अपनी स्थिति को ठीक रखना है, हार्मनी में और सुखी स्थिति में रहना है। उसके साथ बाहर की जो सूचना आ रही है उसको संवेदना के रूप में उसको पढ़ना है, उससे बाहर की वस्तु को के बारे आकलन करना है। अपनी समझ के आधार पर जो हमारा भाव उसके प्रति बना हुआ है, संबंध का भाव, उसके तहत जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको देखना है। उस जिम्मेदारी के भाव के साथ ये जो नया सूचना आया हमको, उसका जो मूल्यांकन किया हमने उसके स्थिति के बारे, बाहर की चीज का, इन दोनों के योगफल में अब हमको क्या करना है ताकि हम उसके साथ पूरकता से जी सकें, उसको तय करना है, उसको करना है। ये रिस्पॉन्स है। इतना हम कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको बहुत ठीक से देख लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही रिग्रेस बात है, क्योंकि ये हम नहीं करते हैं तो हम बहुत सारी समस्या अपने लिए और दूसरों के लिए खड़ी करते रहते हैं, और फिर अपने को जिम्मेदार भी नहीं मानते उसके लिए, हम दूसरे को ही जिम्मेदार मानते हैं। दूसरे का भी हालत वही रहता है, तो दोनों ही जिम्मेदार नहीं मानते अपने को, मतलब दूसरे को, और अपने को जिम्मेदार नहीं मानते, दूसरे को जिम्मेदार मानते कि गलती के लिए वही जिम्मेदार है। और फिर आरोप प्रत्यारोप में चले जाते हैं और अपने संबंध को और बिगाड़ लेते हैं। उससे हम खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। दूसरा पहले से ही दुखी था और दुखी हो गया, वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। तो इसको ठीक से देख लें आप, अभी से लेकर कल सुबह तक इसको बहुत तार तार करके देखें। जितना तार तार करके देखेंगे उतना अपने लिए बहुत आरामदायक होगा। मतलब बहुत सारा ध्यान जाएगा हमारा, अपने को ठीक करने में सहयोग मिलेगा और दूसरों को भी फिर हम सहयोग कर पाएंगे। तो इतना काम हमको करना है 6B के तहत। रिस्पॉन्स में जीना कर, रिएक्शन के बारे तो आपको बहुत सारा पता ही है, तो ऐसा जी रहे हैं।
तो इतने के साथ मैं अपनी तरफ से अभ्यास के संदर्भ में जो ध्यान दिलाना था वो मैं रोक देता हूँ। 6:30 बज गए, लेकिन इसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न है या कुछ प्रश्न रह गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन का जैसा रह गया था उसको हम लोग आगे पूरा कर सकते हैं। बट इसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो, इस अभ्यास 6 के ए और बी दोनों के संदर्भ में या उसके पहले के अभ्यास के संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। पार्टिकुलरली अभी 6B के संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लें, ए और बी दोनों के लिए। जी बताइए। नमस्ते सर।